बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, महंगाई की बढ़ती वेव ने आए दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर दी है। आज मैंने सोचा क्यों ना किराना स्टोर और सब्ज़ी मंडी वहाँ पर जाकर थोड़ा सा कंपैरिजन दूँ आपको कि एक आम आदमी का बजट क्या है, किस तरह वो आता है, कितनी शॉपिंग कर रहा है और व्हाट डू दे फील अबाउट दिस रिसेंट इन्फ्लेशन वेव। आइए आज कुछ लाहौरियों से बात करते हैं और उन ख़वातीन, उन फैमिली से बात करते हैं जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि महंगाई ने आम लाहौरिये का हाल कर क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये ठीक, अल्लाह पाक ने बड़ा आसान है तुहाडी दुआ। इन्ने ढेर सारे पैसे फड़ के तुझे मैं लगता है पूरे साल की शॉपिंग करना आ गया। नहीं सर जी, ये तो 2 किलो की हो भी नहीं आना जी। इन्ने ढेर सारे पैसे ने, हाँ तो 2 किलो की हो भी नहीं आना, 1 किलो की हो आना जी। इन्नी सस्ती हर चीज़ है। शहबाज शरीफ सर जी साहब, कहे शहबाज शरीफ नहीं तो सारा कुछ उन्होंने कहते से कि आपने इमरान खान साहब ने रोंदे सा, हाँ ਹੁਣ ਰੋਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਆਲੂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। कितने महंगाई वेखो, सारी गड्डियां भजियां फिर रही ने, लोग अपने वेखो सामने फड़ लेंगे। किहड़े मुल्क की महंगाई? ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਮੁੱਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। तनख्वाह भी 10% हो। हाँ। हाँ कट लाते पे ने, और भी सुनिया कि लाते नहीं पे। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, 14 ਹੋ ਗਏ। माशाल्लाह। 14 ਵੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? 25-30 तनख्वाह। ਹਾਂਜੀ 30,000 ਰੁਪਏ किराए का घर है ਜੀ। किराए का घर है, ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सरकारी क्वार्टर है ਹਾਂ, की है ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? 14 ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪਾਓ 16 ਬੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨੇ। ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਇੰਜਨ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਗੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਆਟਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਈ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਬਸ ਸਕਦਾ ਦੁਆਈ ਕਿ ਹਾਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਲੂਟ ਕਸੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਖਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਮਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਮਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਇਹ ਉਹ ਮੰਨੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਨਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।
लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹਾਂ इंशाल्लाह अगर ये मुल्क नहीं है तो ਅਸੀਂ भी होगा अल्लाह पाक मुश्किल आसान करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक है। आप लोगों का ये कारोबार तो पैसे ही पैसे हैं, मतलब जी, जिन्हें बिल्कुल। आना है घ्यो आटा सस्ती रिशा है कोई नहीं, जी बिल्कुल ऐसे ही। महंगाई होएगी तो थोड़ा मार्जिन भी नाल बढ़ेगा कि नहीं? मार्जिन नहीं बढ़ता, ये होता है कि जो रास है वो बढ़ जाती है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उस वजह से। अब घी ऑयल की कीमतें जितनी बढ़ी हैं या दालों की कीमतें जितनी बढ़ी हैं, दालें हमारे पास अपनी हैं, हमें तो ये एक बड़ा मकबूल बहाना मिल गया ना कि डॉलर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। अभी जो डॉलर महंगा हुए वो दालें हमारे पास अभी नहीं पहुंची नहीं है? वो नहीं पहुँची। ओके। उनके रेट 10-20 लेके 70 रुपये पर केजी तक महंगे हो गए, ठीक है ना। होंगे? होंगे आज हो चुके हुए हैं। ठीक है। जो आज रेट नोटिफाई होने थे उसमें 70 रुपये पर केजी का फ़र्क है। वो चीज़ें महीना हमारे पहले पास से? जी बिल्कुल, एक महीना पहले से। ओके। वो चीज़ें हमारे पास आई नहीं। 1000 रुपया मन चावल महंगे हो गए हैं जो डॉलर के नाम पे हो रहे हैं। लूट मार अगर वो 100% लूट मार है। वो तो हमारी local अगर वो product है ना? ये चीज़ एक तो लोकल प्रोडक्ट है हमारी, फिर शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। आपको जितने चावल चाहिए आपको मिलेंगे, सिर्फ महंगे मिलेंगे। ये ठीक, ये चीज़ ख़त्म होगी कि आपके पास माल कम है, माल वापर है, जितना मर्ज़ी ले लो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वही लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं जिन लोगों ने ऑयल में पैसा लगाया था। ओके। वो चावलों में पैसे लगा के वो अपनी मनमानी के मर्ज़ी के रेट वो करवा रहे हैं। ओके। दालों के रेट आगे, इसके आगे फिर घी ऑयल की कीमतें, बेहतरीन फ़ैसला था गवर्नमेंट का कि हमें अगर 2 मंथ तक नहीं घी ऑयल मंगवाते तो हमारे पास वहाँ पर स्टॉक है। एक ख़बर ने 60 से 70 रुपये पर केजी घी महंगा कर दिया है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ये बहाने छोड़ के चेक एंड बैलेंस की बात है। किसी को ये नहीं पता कि घी किसने महंगा किया है, किसने सस्ता करना है। कोई बंदा जिम्मेदार है ही नहीं। अथॉरिटी आई कोई नहीं? नहीं, कतई नहीं। कोई अथॉरिटी, कोई जिम्मेदार बंदा है ही नहीं। आप किसी से जाके पूछेंगे कोई नहीं करेगा सिवाय, अब मेरा ख्याल है कि सिवाय मीडिया के कोई नहीं चीख रहा, या आवाम चीख रही है, या मीडिया चीख रहा है कि महंगाई होगी, महंगाई होगी। और बचेगा भी हुकूमत थोड़ी शोर मचाएगी कि महंगाई होगी, महंगाई और जो है कि लेकिन ये दो अगर आवाम तो हो जाएगी खामोश। मुझे लगता है जो हाल कर दी है ना आवाम को, बेहाल कर दी है, तो वो आवाम तो मेरा ख्याल खामोश हो जाएगी। अब रह गया मीडिया, वही जाके जहाँ मर्जी देख ले। अब मीडिया चीख रहा है कि महंगाई होगी है, बहुत ज़्यादा, कुछ इसका करें, कोई करने के लिए तैयार नहीं है आज नहीं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं, बेबी फूड्स हैं, हमारी लोकल आइटम्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है कि उसकी प्रोडक्शन है कितनी, पहले कितनी थी, अब कितनी है, क्या चीज़ महंगी हुई है। उन पर गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, डॉलर महंगा हो गया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा ख्याल उसमें हम भी मुलव्वस हैं लोग, कि एक दिन के लिए मोमबत्ती 30 रुपये वाली हमने 80 रुपये की बेची। मैं खुद ली है, मैंने जाती तौर बिल्कुल ऐसी हकीकत है। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक बंदे को कहें, हम तो सब लोग लूटने पे आ गए। 22 करोड़ के, बिल्कुल हकीकत है कि मेरा ख्याल है कि हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। मुझे ये पता है कि कल जब पेट्रोल की परसों प्राइसेस बढ़ी है ना, आपको कितनी रोडों के ऊपर लोग एहतजाज करते नजर आए। पुराने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते हैं जी, अयूब का दौर हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਚੀਨੀ ਅੰਦਰ पे कुछ पैसे महंगी हुई थी तो सड़कों ਤੇ आ गए पाकिस्तानी। सारी ये मिसाल अयूब के भी तौर मर पे गया, अब क्या वो अवाम भी मर गई नाल, वो सारी अवाम भी पाकिस्तानी मर गए हो। बिल्कुल ऐसे ही बेहिस होगी, बेहोश हो गए। और आज भी हो सकता है कि चावल 2700 रुपये मन मुंजी का रेट था, अब 7700 रुपये हो गया। बाहर से नहीं आई मुंजी, बाहर से डॉलर का नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आपने ली। लेकिन दूसरी बड़ी ज़्यादती ये है कि ज़मींदार को फ़ायदा नहीं हुआ, ना गंदम का, ब्रोकर खा गया। बिल्कुल है। जो मिडल मैन कौन है? मिडल मैन वही लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके मतलब आप बोल भी नहीं सकते। मैं तो बोल लेना ना, बाकी लोग ना बोलन, मैं तो मारे जाओगे फिर। मैं तो बोलना ना। अब वो उन लोगों को मालिक कह लें या कुछ कह लें, वही लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। हमारी लोकल आइटम्स क्यों महंगी हुई? बाकी शॉपकीपर्स ये कह सकें कि ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती, रोक नहीं सकती, महंगाई वापस नहीं हो सकती, 100% हो सकती है, लेकिन किसी का मुल्क है ही नहीं, सब हम लुटेरे हो चुके हैं। तो अब तो ये आप अपनी ज़ुबानी ज़रा रेट पढ़ के नाजरीन को सुनाएं। हो सकता है कि अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ तो कुछ नाजरीन को फ़र्क लगे आके। ए पीछे भाईरान की दुकान है, माशाल्लाह बड़ा कारोबार है, और ये कुछ रेट्स हैं, और इनका एक रेट है जी 15, 12, 22। 15 तारीख 12वें महीने की के रेट हैं, और फिर आगे 31 तारीख 31 यकम ये पहला महीना जनवरी, 31 जनवरी 2023 के रेट्स हैं। मैं ज़रा मुआवजा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास है। वकास भी ज़रा आप अपनी ज़ुबानी पढ़ के सुनाएं मुझे। सर चावल जो है 255 रुपये थे,
जो लिस्ट में आई थी, और अब जो है 295 रुपये रेट सेल हो रहे हैं। दाल चना है 205 रुपये है, 255 रुपये सेल हो रही है। दाल मसूर है 230 है, 265 रुपये सेल हो रही है। दाल माश है इसी तरह 335 रुपये थी और अब 395 रुपये उसका जो सा ना रेट है। दाल मूंग है 225 रुपये थी, 260 रुपये सेल हो रही है। और काले चने 185 से 245 हो गए हैं। बेसन 215 से 255 हो गए हैं। तकरीबन सब वैरायटी पे जो है ना 40, 50, 60, 70 रुपये ये तकरीबन 15 दिन में फ़र्क आया है। ये तकरीबन ये एक 15 दिन नहीं, ये 15 दिन, ये 15 दिन बनते हैं ना। सॉरी 15 दिन, ये 15 15 तारीख से 16वां दिन है आज आपका। नहीं 15, सर, 12 एक माह हो गया ना ये पहला महीना। हाँ 31 के भी, हाँ जी, एक डेढ़ माह, महीने के, 16, एक डेढ़ हाँ जी, महीने, यस डेढ़ महीना जो एक है। डेढ़ महीने। अभी 80 रुपये मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी अपने। तकरीबन जो है ना रुक नहीं रहे स्टॉक, किसी ने रोकने वाले है ही नहीं कोई, हर एक को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। आपकी भी कमाई बढ़ रही है। कमाई हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमने 10% चीज़ें वैसी जो ख़त्म कर दी हैं शॉप से। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सिर्फ रखी हुई हैं, बाकी जितनी इतना एक्स्ट्रा बड़ा थी, कारोबार है यार, तू तो लुट पाई होगी, करोड़पति हो गया होगा उनका। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो लेस कर दी सही से हमने जो दसो, है। कारोबार बड़े जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा अगर, नहीं? अगर किसी के पास 5 पेटियाँ 10 पेटियाँ पड़ी हुई हैं तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी चीज़। तो उसके बाद ऑन गोइंग जी जी रूटीन के अंदर उसमें भी तो फायदा है। फ़ायदा होता है, लेकिन वही स्टॉक होता है ना। हमारी शॉप जैसे है, हम अगर तकरीबन 50 लाख का अगर काम है हमारा, तो उस पर जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारा मामला जो है ना ऑफ कर वापस इसी देते पे हैं। बात करेंगे, इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन अजान स्टार्ट होगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद वापस आएंगे तो कुछ शॉप की कीपर्स और जो कुछ कस्टमर्स हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ही सो की हो जी लंघदी पई है? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह का। वो तो मुसलमान ने हर हाले शुक्र अदा करना ही है, करते लेकिन मामला ठीक चलते पे करते। मामलात बस इस तरह कि महंगाई ਜਿਹੜੀ है तंग कर रही है हर बंदे ਨੂੰ। लोग परेशान ने, ਜਿਹੜੇ ਸੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰ क्या लेने आए हो? पाकिस्तान ਦਾ इधर आओ। ए हुण देखो ज़रा दिखाओ मुझे लिस्ट दिखाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशर। अशर साहब। अशर साहब कितने लोग हैं आप घर के? हम घर के हैं 4 अफराद। 4 अफराद, माशाल्लाह। अब ज़रा लिस्ट दिखाएं मुझे। ये कितनी देर का राशन है? ये है तो महीने का, लेकिन शायद अब महीना ना गुजरेगा इससे। क्यों? मतलब जो इसमें चीज़ रह जाएगी वो दोबारा लेने आनी पड़ेगी। क्यों रह जाएगी? कितने पैसे लेके आए हो? मैं तो लेके आया 5-6 हज़ार। लो जी मौलवी साहब उरे आओ साढ़े कोल। ए वेखो जरा हिसाब करके दियो है मैनू। ऑयल 6 किलो। पेन पढ़ो इंज नहीं, ए तो यार कैलकुलेटर कटो। मैं भी आपको हिसाब किताब नाज़रीन, ये ज़रा 4 लोगों के एक फैमिली का राशन की मैनेजमेंट क्या है मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और कितना उस पर आएगा? 6 किलो ऑयल है जी। जी जी। रेट क्या लगाएंगे? 6 किलो ऑयल अगर शान का हो तो फिर तो 535 क्या कौन सा लेंगे? शामिल होगा, लेकिन पहले वो 500 तक मैं ले गया हूँ। ओहो पाकिस्तान है बेटा, कल लेके गए होगे क्या हो गया? हाँ जी 6 किलो ऑयल लगाएं जी। सर हो गया 6 किलो। चीनी 4 किलो लगाएं जी। चीनी 4 किलो हो गई, 4 36 366। पत्ती 1 पाव लगाएं जी। 368 हो गए। पामलिव 6। पत्ती 1 पाव। जी ये आगे क्या है? धोने वाला साबुन, मुंह धोने वाला साबुन 6 अदद। जी आगे लगाएं जी सर्फ एक्सल 1 किलो। जी सर। आगे क्या है? मैक्स लॉन्ग बार ये लेमन बैक्स 2 लॉन्ग बार। जी जी सर। और गरम मसाला कर ले कोई 100 का, यानी 100 का गरम मसाला जी, डालें। 100 का। काली मिर्च डालें जी इसमें 100 की डालें। 100 की बड़ी है ओके। 100 की हो गई। सिरका स्पून। जी सिरका 200। दाल चना 1 किलो। दाल चना 1 किलो हो गया। दाल माश है। दाल माश हो गया। मेडिकम पेस्ट है। आहिस्ता आहिस्ता मेडिकम पेस्ट। छोटी बड़ी भाई कौन? मीडियम। मीडियम पाव जी। कोलगेट पेस्ट डालें 1। मीडियम दाल। मीडियम हो गई सर। आगे आप डालें माचिस 1 पैकेट। जी सर। काला साबुन 1 किलो। जी सर। एवरीडे 1 अदद। एवरीडे कौन सा साइज? ले पाउडर नहीं होता किलो वाला? हाँ जी। किलो वाला एवरीडे हो गया। हल्दी डालें जी इसमें 1 पाव। हल्दी सर आ गई। नमक 1 पैकेट। जी नमक भी आ गया। शान बिरयानी मसाला 1 पैकेट। साशे में भाई? नहीं बॉक्स। डिब्बा हो गया। बिरयानी महीने में 1 दफ़ा खाते हो बस?
इस तरह ही है। अच्छा जी सर। शैम्पू एक अदद, शैम्पू कौन सा जी? सनसिल्क। सनसिल्क एक अदद ठीक सर 330 हो गए। कितना बनया जी? 8515 रुपये। कितना लेके आए हो जी? मैं तो 5-6 हज़ार के हिसाब से, देर पहले लेके गए हो ये सारा माल? यानी 2 महीने पहले ले गया उनको 5-6 हज़ार। कितनी देर पहले ये सारा कुछ 5000 में आ जाना था? तकरीबन नहीं 6-7 माह से जो है ना, ये जो डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ना, हाँ। उसमें तकरीबन 6-5-6 डबल कह लूँ मैं तो गलत तो नहीं होगा? तकरीबन वो समझ रहे हैं आप, डबल हो ही रहा है। डबल हो गया। डबल हो ही रहा है ना, डबल हो गया है ये 5-6 हज़ार में। मैंने इसीलिए भाई के मुंह से लिस्ट पढ़वाई है और भाई के मुंह से रेट लगवाया है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो चुका है। आप घर से 10,000 लेकर निकलेंगे, 10,000 का राशन लेना है, जब पहुंचेंगे 15,000 तो 15,000 हो सकता है 20 का भी हो गया। अगर आप लकी हैं तो 15 पे बात रुक जाएगी, और अगर आप फिर बाकायदा जो पाकिस्तानियों की किस्मत के हालात चल रहे हैं वही आपके भी चल रहे हैं तो फिर 18-20 हज़ार हो जाएगा। एंड दैट इज़ अ कंट्री वी आर लिविंग इन। आगे चलते हैं कुछ दुकानदारों से और कुछ गाहकों से और भी बात करते हैं। दादा जी की हाल चाल? अल्लाह दा रहमत शुक्र है अल्लाह पाक बीता ठीक शुक्र है घर खरीद सर सब शुक्र है बच्चे ठीक सब शुक्र है अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। किमें जे किन्नू जी सर किन्नू ये हम किलो के हिसाब से बेचते हैं दर्जन ला क्यों नहीं बेचते? बस ये इधर सिंहपुरे में मंडी में तोल के बेचते हैं, हम भी तोल के बेचते हैं। किमें रुपये किलो जे? ये 80 रुपये है, वो 100 रुपये है, 2 रेट है। अमरूद किमें जे? अमरूद 100 रुपये किलो, ते और सेब किमें? सेब भाई जी 250 रुपये किलो है, सेब अच्छे वाले हैं, चेक करें। ते माड़ा बंदा की करे? माड़ा बंदा ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਆ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ 20 ਕਰੋੜ 22 ਕਰੋੜ ਚ 20-25 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। 25 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਪੁਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਕਰਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ। ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਮੈਂ ਦੇ। ਬਦਦੁਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਬਦਦੁਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 50 ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਿਫਰ ਹੈਗੀ। ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਚੋਰ 100 ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਕਿਧਰੇ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੇਚ ਲਓਗੇ? ਰੁਪਈਆ 500-700 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। 1000 ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ? ਜੀ ਸਵੇਰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ? 1000 900 800 700 600 ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ। ਆਮੀਨ। ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈੜੇ नहीं पढ़ना, बस अल्लाह ते छो। मैं अपनी मेहनत नेक निश्ती ना करी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। नाज़रीन, ये मेरे चाचा जी, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, एक पिक्चर है पूरे पाकिस्तान की, ये पिक्चर है पूरी कौम की। हर घर में आपको जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत यही मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। और मुझे नहीं समझ आती कि इसका ज़िम्मेदार मैं किसको ठहराऊँ, किसको पूछूँ कि भाई की होया है तो किन्ने किया है। मेरे पास इसका जवाब नहीं होता। आइए कुछ और लोगों से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। की ना जनाब दा? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई, ये ठीक है? अल्लाह के की भा लसन? भाई ये है, माड़ा बंदा तो बिल्कुल बन गया भाई। लसन का रेट? लसन ने कल सील 90 रुपये पा, अच्छा जी, आज हो गया जो 150 रुपये पा। 60 रुपये की दिहाड़ी पा, मगर वहाँ मगर ए उन्होंने फायदा तो नहीं ना, सानू फायदा नहीं हो रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अच्छा, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, हाँ। लेकिन सानू इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पै रहा। फर्क पैना चाहिए हुकूमत को।
हाँ। ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 90 ਰੁਪਏ ਪਾ ਚੀਜ਼ ਗਾਹ ਖਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਇਹ ਪਾ ਤੇ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸੀ ਦੱਸਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਜ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। 800 रुपए हाँ जी ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ 5,500 ਦੀ ਸੀ, 5,500 ਦੀ ਹੁਣ 11,500 11,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। डबल तो भी उत्ते ਡਬਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਤਾ ਰਾਜ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ। ਆਟਾ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। किवें ठीक होएगा? ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ किन्ना नु ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। करदे ते पे ने ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨੇ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਬਲ ਪਾਕ ਮਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਾਈਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਚੌਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਾ ਲੈ ਕਰ। ਕੇ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲੀ ਤਾਜ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ 235 ਸੀ, ਉੱਥੇ 275 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ। ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਤਾਂ ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। चाइना ने तुर्की ने पता क्या क्या उन्होंने पता नहीं इनको डॉलर देने, ये इमरान खान के वो दे रहे हैं इनको डॉलर। ये देखा आपने न्यूज़? मैं इन्हें खबर नहीं दिंदा, मैं अनपढ़ आदमी है, चिट्टा अनपढ़। आपने एक बड़ा भाई होते रहते, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट माननी है। मुनाफा आपका हक है, काम कर रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम इस ठंड में बाहर खड़े हो, जायज़ मुनाफा कमाना, जायज़ मुनाफा कमाना। जितनी हमारी प्रॉफिट है एक सोच के मुनाफा कमाना है कि जो आपके पास ये सामान लेने आ रहा है वो भी आप जैसा मेरे जैसा, जैसा हो उसको अगर काटेंगे मुनाफा ज़्यादा करेंगे। ऊपर आप कहीं काटे जाओगे ना, आप नहीं कहीं बख्शेंगे। काटे जाओगे ना, आपको आपसे ज़्यादा कोई ले लेगा। ऐसे। जायज़ मुनाफा कमाओ, आपका हक है। मगर जो बात है ना, हमें अल्लाह का खौफ है, यकीन मान। अल्लाह करे कि वो खौफ आपके दिल में रहे। अल्लाह खौफ इस चीज़ का है कि देखो ये पूरी मार्केट में ना, ये पूरी मार्केट है, ये जितनी भी है 150 रुपये पाओ, 160 रुपये पाओ अदरक बिक रही है। सिर्फ क्या है, हमें 120 पार्टी है, हमें 125 130 में आधा किलो दे रहे हैं। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत सिर्फ क्या है, ये भी हमारी जैसी वाम है। हाँ ये अगर ये खाएगी हम खाएंगे तो एक बात है, हमें कोई इसमें वो इशू नहीं होता, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये चीज़ वो नहीं मान रख रही है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। थैंक यू भाईजान, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? सब आए आप? घर में खैरियत है? करम अल्लाह। ये चिकन शॉप जनाब की है, जी जी भाई, कैसा चल रहा है कारोबार? तो कारोबार तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब तो सेल के साथ सेल पूरी हो जाए वो बहुत मुश्किल हो गया। जितना मतलब पीछे से आए वो बिक जाए तो पर वो बिक ही नहीं रहा, वो देखे ना आपके सामने, वो अभी भी काफ़ी जानवर है, तो काफ़ी वो अंदर भी बड़े काफ़ी हैं, ये भी बड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल हो गया है सारा काम। क्या वजह क्या बनी? सर महंगाई क्या है, एक चीज़ जो 300 250 300 के बाद कभी हुई नहीं थी, वो इस टाइम 600 650 रुपये के रेट। कौन कहता है महंगाई इस मुल्क में? ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਨ ਪੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हो? सर महंगाई जो देखिए ना कि जिसके पास है उसके लिए तो महंगाई नहीं है, और जिस बंदे के पास इस मुल्क में रोटी खाने के लिए उसके लिए वो महंगाई है। यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कि वो लोग हम देखते हैं यहाँ पे जो फैमिलियाँ आती हैं गोश्त लेने के लिए, आधा किलो गर्दने 100 रुपये 50 रुपये ऐसे वो पंजे लेके जा रहे हैं, 200 रुपये किलो है। और किस टाइम हमें फील होता है कि यार शायद हमें इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और जितनी हमारी मतलब स्ताद है या अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया हम उनकी अपनी तरफ से भी Very मदद कर good, देते हैं। very good, ठीक है, very good। तो सर ज़िंदगी तो है, आज है कल नहीं है। कल नहीं है, तो ये इधर ही रह जाना है। बस अल्लाह ताला है कि इस मुल्क पे रहम करे, कोई ऐसे हुक्मरान दे हमें जो हमारे मुल्क के लिए सोचे, सिर्फ अपनी जेबों के लिए या अपने घरों के लिए या अपने पेटों के लिए ना सोचे। पेट्रोल महंगा होने का दर्द महसूस हुआ था?
सर पेट्रोल ये एक चीज़ देखने के वो कह रहे हैं कि मईशत में सारी तरफ महंगाई हुई है। मेरा छोटा भाई यूके में होता है, वो बता रहा कहता है यार आपके पास तो महंगाई कोई नहीं है। हमारी जो चीज़ 100 रुपये की थी वो हमें 1000 रुपये में मिलती है, लेकिन उन्हें सारे साथ बेनिफिट बहुत हैं। हुकूमत साथ सपोर्ट बहुत करती है। उनके बच्चे होते हैं, मेडिकल गवर्नमेंट दे रही है, स्कूल मेडिकल हर चीज़ है। तो मैं आगे इस भाई से बात कर रहा था कि 10 साल हुए छोटे भाई को बाहर गए हुए, और कह रहा कि मैंने उतना कम से कम 4-5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया। माशाल्लाह। और मैं वही बता था मैं कि यार हमें यहाँ पे ये हालात नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास घर था वो बिकता नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। एक दरखास्त अपने छोटे भाई की माननी। जी भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, कोई बंदा आ जाए कि मुझे पता चले कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसकी मदद करते हैं। इंशाल्लाह आपने ये जारी रखें इंशाल्लाह। और मेरा आपका वादा, मैं वापस आपका पूछने आऊँगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बड़ी बरकत इंशाल्लाह। सर भाई आप मैं पीछे थोड़े दिन पहले मेरे साथ थोड़ी मसला सा बना, मेरी वाइफ की डेथ होगी, मेरा बेटा। तो मैं वही सोच रहा था कि यार मैं किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, इनके लिए। वो आज मेरे साथ नहीं, कल मैं भी नहीं आऊँगा। तो बस दुआ में याद करें, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे, हमें भी हौसला दे और हमें आगे काम के लिए बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह। ठीक है, आप भाई हैं, आप दुआ में याद रखा करें। आपकी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपका दर्द कम करे, आपकी मुश्किल। अच्छा जी, तो बीचता शुक्र अल्लाह दा। किन्ने दा बेच रहे हो? 80 रुपये किलो। ਇਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ? किलो स्टोर गोदाम में स्टोर की आ रही है, 20 किलो की शैल आती है। अच्छा अच्छा, तो अब ये किलो के हिसाब से बिकता है। जब आप भी सारी रेडी भर के बैठे हुए, शाम का टाइम हो गया, क्यों भर के बैठे हुए, बेचा क्यों नहीं हमें? बस नहीं जाता है, घर की रोटी नहीं पूरे फल फूल कहाँ से खाएंगे? एक गरीब आदमी आप है, हमें हमारे घर की रोटी नहीं। मैं तो आप नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं बड़ा ओपन नहीं करना, मैं तो आप गरीब आदमी। पहले ये था कि एक आदमी घर से 100 रुपये लेके आया, चल 50-60 रुपये की सब्जी ले ली, 20-30 रुपये के बच्चों मेरे फल लेंगे। अब तो ये या डॉक्टर ने कह दिया या कि मेहमान आ गया, उसके लिए ये फल वगैरह। ओके ओके अभी ये मसला, और भी मसला कोई नहीं। आपने सुबह से अब तक कितना कारोबार किया? हमारे 2-3 हज़ार की हो, बचत क्या होगी इसमें? ये तो हाथ से ही आए, हाथ से जाएगा। 22,000 रुपये दुकान में कराया, 2 आदमी हम लोग हैं, रोटी भी खानी है, चाय भी पीनी, दुकान किराया भी निकालना, बिजली की बिल भी निकालनी, कहाँ से होगा? हाथ से जाएगा। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और दुआएं एक दूसरे को भी दिया करें। रब सुनता है, चलो सुन लेगा शायद साढ़े हालात। हम लोग खुद, ये हमारी खुद गलती है, अपनी गलती है। क्यों? मैं बिल्कुल अल्लाह ताला ने खुद किया है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होगी। बिल्कुल। मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। कल परसों से मैं बड़ा दुखी आ चाचा जी इस गल देते। पेट्रोल 35 रुपये महंगा होया, किसे बंदे जो फर्क पिया घराज बैठे गल्लां करनगे। मसला ये नहीं है, महंगाई है आपके लिए, मेरे लिए है। बस दुआ किया करें एक दूसरे के लिए। सफ़ेद पोश आदमी वो मर गया, वो ना मांग सकता है ना काम कर सकता। अब अल्लाह कभी ना करे, हालात आ रहे हैं कि मांगना पड़ेगा, तो या मरना पड़ेगा या मांगना पड़ेगा, वो हालात आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे इस मुल्क को, अल्लाह आसानियाँ, मेहरबानी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधरों आ रहे हो, किधर जा रहे हो? ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਚ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਨੀਚਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੇਹੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 50,000 ਰੁਪਇਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਓ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ 6। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ 6 ਬੰਦੇ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢੀਦਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਖਤੀ ਗਮੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ?
ਇੱਕ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜੀ ਹੈ? 10 ਪੜੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ? ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਵਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ इंशाल्लाह हमेशा दुआवां यार, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ करे, इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे अल्लाह के। अस्सलाम वालेकुम। शेर एक बारी फिर। अल्लाह अकबर। क्यों सर आप तबलीग कर रहे हैं लोगों को, शेर एक बारी फिर? भाई अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो तौबा है। नहीं आपने अभी मेरे सामने कहा शेर एक बारी फिर। मैं उनको बता रहा हूँ भाई, ये लोगों ने, बेचारों ने, इनको पता नहीं था ना, नॉलेज नहीं था जी। ये लोग लेके आए हैं, ये कैसे लेके आए हैं? ये लोग, इन लोगों को नॉलेज नहीं था, ये कैसे इनको लेके पता ही आए? नहीं है वाइट कॉलर क्राइम का, किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इनको तो जब चूल्हा बुझा है तब इनको आइडिया हुआ है, एहसास हुआ है कि मुल्क में क्या हो? इनका चूल्हा जब बुझने लगा है अब इनको एहसास हुआ, क्योंकि ये 1 जमा 1 जानते हैं हाँ। कि 1 जमा 1 के बराबर है 2, ठीक है। इनको नहीं पता जो इतनी टेक्निकल गेम ऊपर होती है हाई लेवल पे। क्या हुआ मुल्क के साथ, क्या हुआ, कहाँ खड़े हैं हम लोग? आपको पता ही है क्या हो गया मुल्क का। मुझे पता है, इनके लिए बता दें। बस इन लोगों को थोड़ा सा समझदारी से सोचना होगा कि बेहतर क्या है हमारे लिए। इमरान खान ही बेहतर इंसान है, शेर एक बार एक बेहतर लीडर। नहीं, अब ये नहीं बोलते, अब ये शेर के बारे में नहीं कहते, इनको आइडिया हो गया है, क्योंकि अब इनका चूल्हा बुझा है तो इनको पता चला है। ये बेचारे, इनको क्या आइडिया था यार कि ये जो बैंकों में जो गेमें होती हैं और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इनको क्या पता था? मैं आपको बार बार यही तो बता रहा हूँ। अब कुछ आइडिया हो रहा है? अब इनको बहुत पता चल गया। मैं चाचा जी थोड़ी पता सी लग बात, गया? इनको थोड़ी सी बात करता हूँ, ये आगे सब ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, हाँ बेशक, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ। हाँ बेशक ठीक है, बेशक ठीक है। ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣਾ। हाँ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। सब वास्ते ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਵੇਚੋਗੇ? तो 2 रुपये रख के बेचांगा। 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ चलो ਲਓ। कुछ चौनी रख के बेचांगा ना। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚੇਗੀ, दुकान का भी किराया देना है, रोटी भी खानी। जी सर। बात सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा है कि निशानियां हैं अकल वालों के लिए। आप इतनी अभी दीन की बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप इसको दीन की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर ऐसे क्यों नहीं आए आप ये कहें ना निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो ये सारे लोग जो हैं ये कोई जानवर तो नहीं है, ये सब इंसान हैं और इनके लिए निशानियां नहीं, इनके अकल में अल्लाह ताला ने अकल वालों के लिए निशानियां दी है ना, तो अकल से काम लेना शुरू कर दें। बहुत हो गया ना, 75 ईयर्स हो गया, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, मैंने भी गुजार ली है। अब आपके और मेरे बच्चे वो सड़कों पे रुलेंगे ना? नहीं रुलेंगे। अगर आप समझेंगे चीज़ों को, गौर करेंगे आप एक देखिए, एक अंधी तकलीफ छोड़ दें, आप गलत तरफ मत जाएं। आपको क्लियर नज़र आ रहा है सारा कुछ कि किसने क्या किया आपके साथ। अल्लाह ताला ने सारा गंद एक तरफ इकट्ठा कर दिया। अगर आपको वो गंद भी नज़र नहीं आ रहा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। चाचा जी आंदा है कि नहीं आंदा नजर? अल्लाह पाक नहीं आता, नहीं आता। एज ए टोल्ड यू अर्लियर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो हमने देखा, कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश की थी आम पाकिस्तानी की लाहौर के रहायशी की ज़िंदगी गुजर कैसी रही है। एंड में ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, बस अल्लाह खैर करे और अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।